Hello students, today we will start a new chapter. The name of the chapter is Plants that live on insects. मतलब ऐसे कुछ पेड़ पौधे जो इंसेक्ट्स को खाते हो, मतलब वही उन लोगों का खाना है. And they got their nutrients from those insects. And for that purpose, they prepared trap type of things. Okay. So in their body, they prepare trap type of things, and that is why we call them insectivorous. So there are some plants which are insectivorous. वो लोग insects को खाते हैं और इसके लिए ट्रैप तैयार करते हैं. जो हम लोग बोलते हैं ना कि फांद जिसको बोलते हैं. Okay, now let's start. You may have heard that the life led by plants is quite as fascinating in its way as the life of animals. तो जैसे एनिमल्स की लाइफ है वैसे प्लांट्स का भी जो लाइफ है वो भी बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत खूबसूरत है और उसमें बहुत सारे जो काइंड्स है देखने को मिलते हैं. बहुत सारे तरह के पौधे हम लोग को देखने को मिलते हैं जो अपने तरीके से इस एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट किए हैं. The passage that follows introduces you to one of the wonders of plant life with which many people are not familiar. तो हम लोग ऐसे कुछ प्लांट्स को देखेंगे यहाँ पे जो हम लोगों को अक्सर देखने को नहीं मिलते हैं. We didn't see them easily in our atmosphere, in our surroundings rather. So it tells you how a number of plants have devised ways of living at the expense of members of the animal kingdom. तो हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ प्लांट्स कैसे अपनी जिंदगी जो है वो बिताते हैं एनिमल किंगडम के ऊपर डिपेंड करके. ठीक है, so let's start the chapter. It is a very ordinary thing to hear of animals eating plants, but have you ever heard of plants setting traps for animals and then sucking them to death? क्या तुम लोगों ने ऐसा सुना है? हम लोगों ने ये तो सुना है कि एनिमल्स जो है वो प्लांट को खाते हैं और उसके ऊपर जिंदा रहते हैं, लेकिन तुमने क्या ऐसा सुना है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो ट्रैप तैयार करते हैं और एनिमल्स को खा जाते हैं या इंसेक्ट्स को खा जाते हैं? It sounds very horrible, yet the plants that set these traps are most interesting. ये बहुत interesting है. These facts are very interesting. और तुम लोग लाइफ साइंस में when you will read life science or biology, you will also read about these plants, this kind of plants. And the creatures they catch are usually flies that we ourselves kill if we have the chance. So flies type of insects they usually kill, which we used to kill in our daily life when we get the chance to kill them because it irritates us. Three of these plants grow wild in the British Isles. That means in British Island countries, in the British Island country, there are some these things of plants we can see. They are usually found on the colder, boggy moorlands of Scotland, Ireland and Wales. So इन जगहों पर हम लोग को वो देखने को मिलते हैं जहाँ पे ठंडा और कुछ मतलब जहाँ पे कुछ भीगा भीगा सा एटमॉस्फेयर हो वहाँ पे देखने को मिलते हैं. In England they are to be found, but only one of them, sundew, is common. लेकिन जितने सारे ऐसे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं उसमें sundew जो है वो कॉमन है. The leaves of sundew form a rosette pressed back upon the ground. Each leaf is round with rather a long stalk and is covered with
club shaped red hairs. तो look at the next page. देखो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे जो पिक्चर है ये सनड्यू का पिक्चर है. देखो यहाँ पे ऐसे एक क्लब शेप्ड ऐसे करके है और ये एक बड़ा सा सकिंग ट्यूब टाइप का है. और ये जो फ्लावर्स में हम लोग को देखने को मिलते हैं उस टाइप का कुछ है जो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं खुशबुओं से और नेक्टर से. तो ये नेक्टर और खुशबू से अट्रैक्टेड होकर जो है इंसेक्ट्स यहाँ पे आके गिरते हैं और ये जो है ऐसे करके बंद हो जाता है. सनड्यू का जो है ऐसे करके ऊपर से बंद हो जाता है. राइट. ओके, come to the passage. So shaped red hairs. There are about 200 hairs on each leaf. तो एक लीफ के ऊपर ये वो जो रेड कलर का हेयर टाइप को हम लोग को देखने को मिला तो वो है जो मतलब 200 कम से कम होते हैं. एंड एट द एंड ऑफ ईच इज अ ब्राइट येलो ग्लिसनिंग ड्रॉप. और एक एक हेयर लाइक जो रेड कलर के होते हैं उसके ऊपर एक ग्लिसनिंग ड्रॉप, एक बूंद, कुछ ओस की बूंद की तरह गिरा रहता है. विच लुक्स लाइक ड्यू एंड गिव्स द प्लांट इट्स नेम. तो वही ड्यू टाइप देखने को जो है ग्लिसनिंग टाइप का कुछ लिक्विड वहाँ पे रहता है जिसके लिए इसका नाम रखा गया है सन ड्यू. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द rosette, a flower stalk rises in summer, and it is those plants which catch the most flies that make most flowers and seeds. तो जो फ्लाइज हैं उड़ के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठते हैं और फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करते हैं. तो जनरली वो सब इंसेक्ट्स को ही ये जो सनड्यू है ये खाते हैं. The leaves with their red hairs are the fly traps. The glistening drops attract insects. Those dew kind of thing, that glistening drops attract insects in search of nectar. But when they alight, they find the yellow drops so sticky that they cannot get away. तो वो इतने स्टिकी होते हैं, वो ड्यू टाइप का जो थिंग होता है जिसमें एक बार इंसेक्ट बैठने के बाद उससे उठ नहीं पाता है, उड़कर जा नहीं पाता है बिकॉज इट्स वेरी स्टिकी इन नेचर. दे मे स्ट्रगल बट इन डूइंग सो दे टच मोर रेड हेयर्स एंड गेट मोर एंट्रैंगल. जैसे ही वो लोग निकलने की और कोशिश करते हैं और वो फंसते जाते हैं. The wonderful thing about these hairs is that if rain or sand falls upon them, they do not move. तो अगर इसमें रेन ड्रॉप्स गिरते हैं, कुछ भी गिरता है तो क्या होता है ये फिर भी ये उठ नहीं पाते हैं वहाँ से. When anything fit for food touches them, they begin to curl over and pin it down. जब भी खाने लायक कुछ उसमें गिरता है तभी वो लोग ऐसे सिकुड़ जाते हैं, ऐसे सिकुड़ के अपनी अंदर वो खींच लेते हैं. Sometimes we wonder whether plants can feel and whether they can send messages from one part to another as we can along our nerves. तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग महसूस करते हैं तभी कुछ एक्शन करते हैं, है ना. जैसे तुम्हारे हाथ के ऊपर एक मच्छर बैठा है तो तुम उसको फील किए, मच्छर काटा तो हाथ से नर्व जो है वो एहसास जो है ब्रेन तक लेके जाता है और फिर क्या होता है, ब्रेन तुम्हें कमांड देती है कि यू हैव टू बीट दैट मॉस्किटो एंड हम लोग उसको मारते हैं. तो ऐसे जो है हम लोगों का नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है. तो नेचुरली एक सवाल जो है मन में पैदा होती है कि क्या प्लांट्स के अंदर भी ऐसे कुछ नर्वस सिस्टम है जिसके ज़रिए ये लोग ऐसे काम करते हैं. सो वी कैन गेट द आंसर क्वाइट इजीली इन साइंस. ओके, so pin it down. Sometimes we wonder whether plants can feel
and whether they can send messages from one part to another as we can along our nerves. Certainly, it is very difficult to understand why all the tentacles or hair-like things of the sundew leaf curl ever towards the prisoner. तो ये कैसे सिकुड़ जाते हैं? कोई इंसेक्ट जैसे ही उसके ऊपर बैठता है और वो हेयर लाइक थिंग ऐसे करके सिकुड़ जाते हैं. तो ये क्यों होता है? ये कुछ ऑक्सीन्स या कुछ हार्मोन्स के वजह से होते हैं. ये तुम लोग साइंस में पढ़ोगे आगे चल के. Whether the fly has touched them or not. Yet, this is what happens. तो यही होता है. The poor fly is suffocated by these hairs and the juice which they pour over it. It takes about 2 days for the sundew to digest a fly. तो एक फ्लाई को डाइजेस्ट करने में, हजम करने में एक sundew को 2 दिन तक का टाइम लग जाता है. तो कितना न्यूट्रिएंट्स उसको वहां से मिल जाता है कि 2 दिन तक वो उसको डाइजेस्ट करता रहता है. So that plant get enough nutrients from that fly. And when the tentacles open out once more, फिर से tentacle के जो होते हैं वो सीधा हो जाते हैं. All that remains are the dry wings and skin. तो वहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि वो जो फ्लाई बैठा था उसका ड्राई स्किन, उसका विंग, वो जो है मतलब कुछ खाने के बाद जैसे हम लोग उसका एक लेफ्ट ओवर कुछ मुंह के अंदर बच जाता है तो हम लोग चबाने के बाद दैट ठीक उसी तरीके से कुछ उसका हिस्सा जो है बच जाता है और बाकी सारा न्यूट्रिएंट्स जो है उसके अंदर का जितना भी फ्लैशी पार्ट होता है या जूसी पार्ट होता है सब कुछ जो है वो प्लांट जो है अपनी तरफ खींच लेती है. ओके. The leaf too is dry for a short time. लीफ भी कुछ टाइम के लिए ड्राई हो जाता है so that wind and rain can clear away the remains before. देखो कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है उसका अपना कि जब उसका खाना मतलब पच जाता है तो वो क्या करता है, वो लीफ ड्राई हो रह जाता है ताकि हवा से या पानी से वो इंसेक्ट का जो लेफ्ट ओवर पार्ट है वो चला जाए. अगर वो स्टिकी पोर्शन रह जाता तो क्या होता, विंड से या हवा से या रेन से वो नहीं जाता. दैट मीन्स ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक एडॉप्टेशन है. ओके. सो क्लियर अवे द रिमेन्स बिफोर द लीफ सेट्स अबाउट अट्रैक्टिंग अनदर फ्लाई. और फिर उसको छटकने के बाद वो sundew फ्लाई ट्रैप जो है फिर से अपने अंदर वो तैयार हो जाता है एक नए फ्लाई को पकड़ने के लिए. ठीक है, एक नए फ्लाई को फिर से ट्रैप करने के लिए. तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ते हैं आज के लिए. फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसको कैरी ऑन करेंगे. ओके, थैंक यू.